कहना चाहोगे? हाँ जी, बड़ा धन्यवाद मैं करना मीडिया का, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ 2-4 ਨਾ ਲੈਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫ ਕਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਚੱਲਦਾ ਕੌਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਲੱਖ ਬਣਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਸਤੇ ਕਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕਵਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਦਾ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਸਦਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਅਜੀਬ ਜ਼ਬਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ 2-4 ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਉਲਮਾ ਆਈ ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਵਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ इलाके चो आए हो तो की जड़ा इन्होंने परिवारों ने तुहाडे वालों सहायता की गई है? किस जगह से आए? कहाँ से आए हो? हम लोग सूरत जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मौलाना महमूद मदनी साहब उनकी जमीयत की तरफ से आए हैं और एक आम इंसानियत के लिए इसमें हम ये नहीं देखते कि मुसलमान है, ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये नहीं देखते कि ये सिख है, इंसान है, इंसान की मदद करनी है। और ऐसे मौके पर जबकि उनका घर बार और उनके जानवर मवेशी सब बह गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, ऐसे मौके पर अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कब मदद करेंगे? तो हमारी नीयत आगे ये भी है कि इनके मकानात की तामीर में भी हम हिस्सा लें, अल्लाह वसअत दे तो। और हमसे जो हो सका हमने इनका ताउन किया। देखा जाए अगर बात करें तो बाढ़ की स्थिति में काफ़ी परिवार जड़े ने नुकसानदायी हुए हैं, तो आपकी जड़ी प्रपोज रहेगी यहाँ तक रहेगी और भी परिवारों तक आप पहुँचेंगे, उनकी भी आपकी ओर से कोई सहायता की जाएगी? जहाँ तक हमारी गुंजाइश है, ताकत है, हम वहाँ जाएंगे और उनकी मदद और उनकी इमदाद करेंगे। और उसके बाद फिर हम अपने दूसरे साथियों को यहाँ भेजेंगे, उनको मुतवज्जे करेंगे कि हमने यहाँ तक मदद की, अब आइंदा और आगे आप लोग मदद करो। इसलिए कि सैलाब का दायरा बहुत दूर तक है, तो बहुत सारे लोग आए और अलग अलग जमात आए और सब लोग मिलकर मदद करें, तब जाकर ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बड़ी बात की आप लोगों ने, मैं अच्छा लगा हमको भी इनके घरों के लिए आपने इतनी बड़ी बात कह दी। 6 घर रुट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और भी घर का काफ़ी नुकसान हुआ है, फिर भी आपकी ओर से इनकी मदद की जा रही है, बड़ी बात है। क्या कहना चाहोगे? ये अल्लाह की तौफीक है। यही वक्त है कि जब इंसान की मदद करे, जब वो दुखी हो। अगर कोई खुशी में मदद करे तो कोई मदद नहीं होती है,
आज उनका घर उजड़ चुका है, रोज़ी रोटी के लिए उनके पास जो खेती थी वो भी पूरी तबाह हो गई है। उनके जानवर और मवेशी थे जिससे वो दूध निकाल कर बेचते थे, वो भी बहकर चले गए हैं। तो ऐसे मौके पर ये लोग कहाँ जाएंगे? तो यही वक्त है, सही वक्त है कि हम मदद करें। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो बंदा मखलूक की मदद में रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में रहता है। और ये तमाम की तमाम मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है, और जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा मामला करेगा, अल्लाह ताला उसके साथ अच्छा मामला करेगा। तो ये हमको एक तालीम दी गई है, उसकी रोशनी में हम यहाँ आए हैं और हम मदद कर रहे हैं। अगर बात करें सरकारों की, तो सरकार भी बहुत इधर संस्था होगी, सरकार के नुमाइंदे, इनका ज़्यादातर रोज़ यही है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। संस्था की बात करें तो लगातार हमारे तक प्रपोज कर रहे हैं। सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे कि इनके परिवार की ओर ध्यान देना चाहिए? सरकार इसीलिए है कि वो अपनी रियाया की फ़िक्र रखे। सरकार को चाहिए कि हमारी रियाया में कोई भूखा न सोए। सरकार को चाहिए कि हमारी रियाया के अंदर कोई प्यासा न सोए, कोई बीमार न सोए। तो जब भूखा प्यासा बीमार सोना वो सरकार के लिए ज़िम्मेदारी बनती है, तो यहाँ तो पूरी बस्ती की बस्ती उजड़ गई, कुछ भी नहीं रहा। ऐसे मौके पर सरकार को माँ बाप का दर्जा हासिल करके इन पब्लिक को, इन रियाया को आगे चलकर उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि उनको ऐसा एहसास हो कि सरकार ने दुख के वक्त में हमारी मदद की। अच्छी बात की इन्होंने। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर ये परिवार इन लोगों के दुख दर्द में आकर शामिल होकर इनकी बाँह पकड़ रहा है, तो सरकार को भी थोड़ा अपना हिस्सा इन परिवारों में डालना चाहिए, ताकि इन परिवारों का जो नुकसान हुआ उसका जो उनको फ़ायदा मिल सके। सो यहाँ पर और भी कई परिवार हैगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? और लगातार देखा गया कि इधर आपकी संस्था जो बेचारे बहुत दूर दूर से पहुंच कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इनको? जनाब, नाम मेरा शफी है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का करने जिन्हें साढ़े तक पहुँचे, साड़ी आवाज़ उपर तक पहुँचाई, ये बजुर्ग साढ़े तक पहुँचे न, तो अं बहुत बहुत शुक्रगुजार ने इन्हों का। सरकार दे साढ़े वाल पुजी नहीं अजे तक। ये दुनिया ये बाहर से टीम आई है, हैदराबाद से, कोई कहीं से अपने अब्लाए कराम, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हम। ये हमारी मदद कर रहे, ये हम लोग राशन भी दे रहे, पैसे भी दे रहे, कपड़ा भी दे रहे, कंबल भी दे रहे, ये सब कुछ दे रहे। सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं पूछा। 2 मंजे पूछे तो मंजे में भूखे नींद आई नहीं। परिवार का तो चलो चल रहा है कि जैसे जानवर आपने ज़्यादातर आपने बोला कि बह गए हैं, कुछ तो बचे होंगे, उनका कैसे चल रहा है कि कैसे उनको जो पाल पोषण आपकी ओर से किया जाए? क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे? कुछ संत को मार नहीं सकता, गुजारा तो करना ही है, किसी न किसी बहाने में गुजारा तो वो ऊपर वाला करा ही रहा है। जो फरिश्ते बन के हमारे तक पहुँच रहे नहीं, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। जो अच्छी बातें की इन्होंने। हमारे साथ और भी भाई इधर जो बाहर से पहुँचे हैं। भाई क्या नाम है, तो वो कहाँ से पहुँचे और क्या ये इनकी से आपकी ओर से सहायता की जा रही है? मैं सरहिंद रहता हूँ, सादिक हुसैन, और हमारे साथ मौलाना अरशद मीर साहब, ये जमीयत उलमा के हिंद के सदर, जो सूरत गुजरात से। तो हज़रत मुसलसल मुझे फ़ोन आ रहे थे कई हफ़्तों से कि उनके जो नुकसानात हुए हैं इस इलाके में, कि उधर जाना है, कोई तरतीब बनाएं, तो उसी वजह से बस आना हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे आपको मालूम पड़ा और कैसे यहाँ तक पहुँच की आपने? हमारे साथ इलाके के ही जो बशारत अली प्रधान साहब हैं, इन्होंने तहकीक करके और ये हम तक यहाँ पहुँचाया इन्होंने।
कैसा महसूस हो रहा है? परिवारों के बीच में आते हो, उनके घरों की स्थिति देखते हो, दिल को ठेस भी पहुंचती होगी। दुख भी पहुंचा है हंसते बहुत। पहसते परिवार जो उजड़ गए हैं, कहीं कोई कहीं बैठा है, कहीं कहीं बैठा है, पहले एकजुट होकर बैठते थे। कैसा लग रहा है उनके? देखो, पूरे जो हमारी टीम आई है उसको पूरा दुख है और दर्द है, और रात से जो है परेशान है इसी चीज़ को लेके कि किस तरीके से जो है इन परिवारों की मदद की जाए, क्या तरतीब बनाई जाए। ये मशवरा चल रहा है बराबर, और इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत दे और ये चलता रहेगा। जो होगी इंशाअल्लाह वो मदद की जाएगी। सो लगातार अगर बात करें तो संस्था की ओर से इन परिवारों की जो उपाय पकड़ी जा रही है, इनके लिए बड़े बड़े जो दावे भी किए जा रहे हैं। आने वाले समय में देखा जाएगा कि इनकी ओर से जो दावा किया गया है कि अगर सरकार इनकी ओर ध्यान देती है तो ठीक है, नहीं तो हमारी ओर से जो इनके घर बनाए जाएंगे। पर हम भी यहीं रहेंगे और हम भी देखेंगे, जब बनाएंगे तो हम भी पहुंचेंगे तो और देखेंगे तो बताएंगे दुनिया वालों को, और सरकार को भी दिखाएंगे कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बने रहो हमारे साथ और देखते रहो पंजाब चेक न्यूज़।